Good morning, students. As you already know, Geography chapter 4 Agriculture is going on, and the topic will be discussed by us today is fiber crops. Among the fiber crops, we have already discussed about the cotton. Today we will discuss the topic of jute. The crop jute. Jute is a very important crop. It is known as golden fiber. This fiber is known as golden fiber. कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के अंदर कि विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर. सो वी विल राइट द आंसर जूट. Jute is grown in the season of Kharif. Cotton is also grown in Kharif. Now temperature. What temperature is required for the growth of jute? High temperature is required during the time of growth. जूट को ग्रो करते समय हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. मेनली अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट. Soil. Well drained, fertile soil is required for the growth of jute, and the soil which renewed every year. Such soils are found especially in the floodplains. Rainfall. Heavy rainfall is ideal for the cultivation of jute. About 120 centimeter to 150 centimeter is good for the cultivation of jute. Now what type of climate is required? Mainly because high temperature है, heavy rainfall है, so we can write humid climate is required for the cultivation of jute. Now which states are mainly suitable for the cultivation of the jute? First is West Bengal. सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जूट ग्रो वेस्ट बंगाल में ही होता है. जूट मिल जाता है इसलिए वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के आसपास एरियाज में लगी हुई है. देन बिहार. बिहार इज सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन इंडिया. आसाम, Odisha, Meghalaya are the major jute producing states in our country. I am again repeating class. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya. These are the major jute producing states in our country. These are the climatic conditions required for the growth of jute. Now beta, we will discuss about uses of jute. Jute is used for different purpose. Mainly it is used in the making of gunny bags. It is also used in making mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. different things के अंदर, डिफरेंट आइटम्स के अंदर हम जूट को यूज करते हैं. इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद से जूट का यूज और बढ़ गया है बिकॉज गवर्नमेंट्स ने पॉलीथीन्स को यूज बैन कर दिया है. लगातार जूट की इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनल डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं. बट ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है इन कंपेरिजन टू द अदर सिंथेटिक फाइबर्स. It is losing market to synthetic fibers and packing material. Mainly packing materials में हम इसे यूज करते हैं और सिंथेटिक फाइबर से कंपेरिजन में इसकी कॉस्ट जाता है. स्पेशली नाइलॉन बहुत चीप पड़ता है लगातार, इसलिए इसकी मार्केट पर फर्क पड़ता है, इसकी मार्केट कम हो जाती है. बट जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है इसकी मार्केट बढ़ी है. बट यदि इसकी कॉस्ट थोड़ा और कम हो जाए, इसका प्रोडक्शन और बढ़ाई जाए तो शायद इसका यूज और बढ़ सकता है बिकॉज इट इज environment friendly also. Now we will discuss about a movement that is known as Bhudan
and Gramdan movement. Mainly this movement was initiated by the Vinoba Bhave. First of all, we discuss about that. Who was Vinoba Bhave? Vinoba Bhave was declared as spiritual higher by Gandhi ji. Spiritual means गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था. गांधी जी ने स्वयं विनोबा भावे को अपना कहा था कि ये मेरे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होंगे. विनोबा भावे जी पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द 4 मोस्ट सत्याग्रही. गांधी जी ने जितने सत्याग्रह चलाए थे ऑलमोस्ट सभी सत्याग्रहों के अंदर सत्याग्रह मीन्स सत्य प्लस आग्रह, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से बेस पर जितने आंदोलन गांधी ने चलाए थे उन सभी के अंदर उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था एज अ वन ऑफ द सत्याग्रही. इवन विनोबा भावे जी वाज अ सपोर्टर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज वाज सपोर्टेड बाय इनिशिएटेड बाय द गांधी जी एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज ऑल्सो सपोर्टेड बाय विनोबा भावे. तो कहीं ना कहीं वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे. नेक्स्ट, विनोबा भावे स्टार्टेड पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द डेथ ऑफ गांधी जी. विनोबा भावे डिसाइडेड टू स्प्रेड द नॉन वायलेंस and the concept of Gram Swaraj. Vinoba Bhave thought to spread the message of Gandhi ji to the whole country. So he started पद यात्रा. उन्होंने पूरे देश में पैदल यात्रा करनी शुरू की ताकि गांधी जी के ग्राम स्वराज के जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरे देश में फैलाया जा सके. ड्यूरिंग हिज ट्रेवल, जब वो यात्रा पर निकले हुए थे पैदल यात्रा पद यात्रा पर, विनोबा भावे जी रीच टू आंध्र प्रदेश. इन आंध्र प्रदेश देयर इज अ विलेज पोचामपल्ली. व्हेन इन दिस विलेज विनोबा भावे जी वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर टू द फार्मर्स. दैट टाइम सम पुअर फार्मर्स रीच देयर एंड डिमांडेड फॉर सम लैंड फॉर देयर वेलबिंग. उनसे कहने लगे इकोनॉमिक वेलबिंग के लिए हमारे पास कुछ भी जमीन नहीं है, प्लीज सरकार से कहकर के हमें कुछ जमीन दिलवा दीजिए. विनोबा भावे जी नॉट प्रॉमिस टू देम. गांधी जी विनोबा भावे जी उन्होंने उस समय वादा तो नहीं किया बट ही अश्योर्ड देम, लेकिन उन्होंने विश्वास जरूर दिलाया दैट ही विल टॉक टू द गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ, कि उनके बिहाफ पर वो गवर्नमेंट से बात करेंगे और उनके लिए कुछ जमीन का प्रोविजन कराएंगे. इफ दे फॉलो, यदि वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे, मिलजुल कर फार्मिंग करेंगे, तो शायद सरकार से कहकर के उन्हें जमीन दिलाने की वो कोशिश जरूर करेंगे. सो ही अश्योर्ड देम, नॉट प्रॉमिस देम. उसी मीटिंग के अंदर जहां वो विनोबा भावे जी लेक्चर दे रहे थे, एक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के व्यक्ति बैठे हुए थे. सडनली ही स्टूड अप, वो अचानक खड़े हुए एंड ही ऑफर्ड हिज 80 एकड़ ऑफ लैंड. उन्होंने अपनी 80 एकड़ जो जमीन थी, कहा कि अपनी 80 लैंडलेस फार्म विलेजेस को, ग्रामीणों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी. वो खड़े हुए और कहा कि मैं अपनी जो एक लैंडलेस फार्मर जमीन मांग रहे हैं, इन 80, मेरे पास 80 एकड़ जमीन है, 80 एकड़ जमीन को मैं इन लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, दान कर रहा हूं. उन्होंने जमीन दान की थी. जमीन को हिंदी में भू भी बोलते हैं. सो दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान. इसलिए इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस, इस इंसिडेंट को भूदान कहा गया. लेटर इस आइडिया से विनोबा भावे इतने प्रभावित हुए, ही इंट्रोड्यूस और स्प्रेड दिस आइडिया. उन्होंने वाइडली पूरे देश में इस आइडिया को स्प्रेड करने का, इंट्रोड्यूस करने का विचार किया. एंड ही ट्रेवल इन द इंडिया एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ भूदान. सम जमींदार्स, विलेज ओनर्स, कुछ जमींदारों ने, कुछ विलेज मालिकों ने जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस. कुछ जमींदार, कुछ विलेज ओनर्स थे तो पूरे के पूरे गांव ही लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर दिए. जब विलेज को हिंदी में ग्राम बोलते हैं संस्कृत के अंदर, सो हिंदी में गांव, संस्कृत में ग्राम. सो when the whole village was donated by some zamindars or village owners, this act was known as Gramdan. This revolution, this act regarding the
भूदान एंड ग्रामदान was also known as bloodless revolution। इतने बड़े लेवल पर एक रेवोल्यूशन हुई, लोगों ने जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने लैंडलेस फार्मर्स को जमीन डोनेट करनी स्टार्ट कर दी। इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। दैट्स व्हाई दीज मूवमेंट्स आर नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशंस। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो विलेज ओनर्स ने जो जमीन दान की थी उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी था। उन्हें लोगों को डर था कि शायद सरकार एक लैंड सीलिंग एक्ट लाने वाली है, जिनके पास ज्यादा जमीन है सरकार उसे जमीन छीन करके जिनके पास नहीं है उन्हें देने वाली है। इससे अच्छा कि पहले ही लैंड डोनेट कर दी जाए और कुछ नाम कमा लिया जाए। इस डर से भी उस लोगों ने जमीन डोनेट करनी स्टार्ट कर दी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म्स in agriculture।